When we stand in 21st century, we need to identify even more with the educational philosophy of Dr. B.R. Ambedkar, which is rooted in lots of struggle, sacrifice and excellence. If we look back, we find that Dr. Ambedkar acquired the highest qualification, not for his self-enhancement, but to bring about a positive and everlasting change in the history of humanity, and particularly for the downtrodden people. To an artist, a plain canvas and his art tools are his greatest assets. Give him what he needs. The masterpiece that is in his imagination can be made to come alive. In the same way, every child needs the right tools to draw, sketch, or paint masterpieces with their lives. And that tool, without a doubt, is education. Given access to quality education, a child can begin to attain his or her true potential, impacting not only their generation, but also many other generations to come. Like Dr. Bhimrao Ambedkar, the man who not only gave India its constitution, but also actively facilitated, promoted and advocated education for all, irrespective of their caste, class, gender, ethnicity or other barriers. डॉक्टर अंबेडकर का जो जीवन है वो केवल एक सामान्य जीवन नहीं है और वो केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ, एक संस्था, अपने आप में कोई इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशन कई तरह का इंस्टीट्यूशन है, और अपने आप में एक दुनिया को बदलने की प्रेरणा देने वाले एक महापुरुष का जीवन है। और महापुरुषों का जीवन आसानी से बनता नहीं है, और कम से कम बाबा साहेब अंबेडकर जैसे व्यक्ति का जीवन आसानी से नहीं बनता। बाबा साहब ने जो 3 मंत्र दिए हैं, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रगल, उनमें पहला मंत्र है शिक्षा है, एजुकेट। एजुकेट का मतलब है शिक्षित होना भी और दूसरों को शिक्षित करना भी। शिक्षा के बारे में बाबा साहब सबसे अधिक महत्व देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, भारतीय सभ्यता जो है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, वो ज्ञान की सभ्यता रही है। और किस कारणों से भारत का ये वंचित समाज इस ज्ञान की धारा से वंचित हो गया, इसके कारण तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब पहले सामाजिक और राजनीतिक चिंतक हैं जिसने भारतीय समाज की इस कमजोरी को समझा कि आखिर भारतीय समाज में जो ये इतना बड़ा सामाजिक जो एक गैप है, इस गैप को फाड़ने का सबसे बड़ा और शांतिपूर्ण तरीका है शिक्षित होना। शिक्षा के माध्यम से इस भारतीय समाज को संगठित भी किया जा सकता है, इसको शिक्षित भी किया जा सकता है, इसमें बराबरी भी दी जा सकती है। तो बाबा साहब का जो ओवरऑल मिशन है, उसमें शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। Baba Saheb Ambedkar tried to solve the most fundamental conundrum of contemporary life, and perhaps this is the central theme of his educational philosophy, which also lied in the 3 principles called liberty, equality and fraternity. Dr. Ambedkar always, inspired millions of masses to learn, to educate. And therefore, in today's scenario, we see his magnanimous statues across the globe stand for his power, his magnanimous learning, his diverse knowledge, and stand for his remarkable journey of education. As a person teaching law and legal jurisprudence, I understand that the idea of cultivation of mind as promoted by Dr. B.R. Ambedkar as the primary goal of one's life is highly significant. His entire educational philosophy revolves around this only.
He is the original philosopher of education, and education is the primary instrument of social change according to him. Education, according to Dr. Ambedkar, is therefore not just about the development of the self, but the whole. It is not merely gaining information and knowledge, but it must lead to understanding and wisdom. Education, according to him, must encourage rational and also critical thinking, while at the same time allowing creativity to soar. Every child begins drawing their dreams on the canvas of their life with equal enthusiasm and hope. Yet, some dreams are cut short even before it can begin to take shape. Opportunities are not available to many of them. The colors of their dreams are snatched away due to gender bias, social discrimination, regional disparities, poverty, digital divide, and whatnot. Education is a struggle. It's a struggle for all of the subalterns in society. For Ambedkar, it was also a struggle. He had to, in those days, Dalit children could get into some schools, but very often they had to sit apart. Very often they had to, and still have to in many areas, do the dirty work of the schools. But he persevered. उसके बाद उनके पास आ गए एक अंधेरा था कि मैं कैसे पढ़ूं, पैसा नहीं है, साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, कुछ नहीं है। तो उनको किसी तरह से उनको जो स्कॉलरशिप मिली, और स्कॉलरशिप मिलकर के जब वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां से उनके जीवन में एक दिशा आती है, एक बदलाव वहां से आता है, क्योंकि यहाँ रहते हुए उनके लिए पढ़ना संभव नहीं था। तो इसलिए बाहर गए तो एक अलग तरह का वातावरण, वहां उनको अस्पृश्यता का दंश नहीं झेलना पड़ा, वहां उनको जातिगत अपमान की पीड़ा नहीं सहनी पड़ी। Dr. B.R. Ambedkar was deeply concerned about these systemic, political, and social barriers that stood in the way. He used every platform he could to minimize these challenges and also offered practical solutions on how to break those barriers. In our discussion on the educational philosophy of Dr. Ambedkar, we are at National Museum of Dr. B.R. Ambedkar at 26 Salipur Road today. And if we look at him as a true public intellectual and as someone who made the most effective use of his educational knowledge to influence the lives of people at the grassroots. And we are able to see clearly, like Ambedkar kind of exercised all his educational ability for a larger social change. यहाँ पे आप देखेंगे इस स्मारक में 5 जोन है और 27 एग्जीबिशन है, जो पूरे बाबा साहब की पूरी लाइफ जर्नी को बताया गया है एक जगह। आए हम दिखाते हैं बाबा साहब की लाइफ जर्नी के बारे में आगे। अब ये देखेंगे जिसमें बाबा साहब के चाइल्डहुड के उनके स्कूल के दौरान का सीन दिखाया गया है। इसमें फर्स्ट टाइम जो एडमिशन बाबा साहब का होता है ये 17 में होता है, 1900 में। बट जब दाखिला होता है तो इनके लिए नियम बना देते हैं, क्योंकि वंचित समुदाय के होते हैं, तो इनके लिए 3 नियम बना देते हैं कि तुम पानी जब तक नहीं पी पाओगे जब तक चपरासी नहीं आएगा, और तुम जब भी क्लास में एंट्री लोगे तो नीचे बैठ के पढ़ोगे, और थर्ड तुम्हें संस्कृत पढ़ने को नहीं दिया जाएगा। फिर भी बाबा साहब ने 1907 में जब 10th क्लास कंप्लीट की, अच्छे डिवीज़न से कंप्लीट किया, जो बाबा साहब का नाम हो गया उस जगह सतारा। डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल में जो विजिटर्स आते हैं वो काफ़ी प्रभावित होके जाते हैं। प्रभावित होने के बाद में वो अपना योगदान समाज में देना चाहते हैं। Memorials like these are truly worthy of the man that Dr. Ambedkar was. Yet, beyond these physical structures, thorough examinations of his ideas on education and right implementation of these ideas can be worth even more.
education is a weapon of mental and educational development, weapon of eradication of social slavery, of economic development, of political freedom, unquote. By these words, Dr. Ambedkar wanted to convey that education does not only mean to read and write, but it also means to eradicate the social evils of our society and to establish the social inclusivity in our society. And that is what the overall message of Baba Saheb Ambedkar is. दलितों, वंचितों, इनके अलावा महिलाओं को भी शिक्षा में स्थान मिले, उनको बराबरी मिले, इसके लिए भी बाबा साहब ने जीवन भर इसके लिए आवाज़ उठाते रहे। बाबा साहब ने खुद जब वो इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उस समय वो अपनी पत्नी को पत्र लिखते हैं कि भाई आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, और अगर ये शिक्षा के रास्ते में पैसा कहीं आए तो अपने अलंकार बेच के भी पढ़ाई को जारी रखो। इससे पता लगता है कि वो शिक्षा को और खासकर महिलाओं की शिक्षा को कितना महत्व देते थे। आप यहाँ देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहेब नाम कैसे पड़ा। जब इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है 27 मई 1935 को माल न्यूट्रिशन के कारण, ये अपने फर्स्ट वाइफ से बहुत प्रेम करते थे। उस टाइम महिलाओं को जैसे पढ़ाया नहीं जाता, बट इन्होंने बचपन से ही अपनी वाइफ को पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि इनकी बाल उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी। तो जब डेथ हो जाती है तो 6 मंथ तक ये घर में ही रुकते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो इस बेस में निकलते हैं जो आप सामने देख रहे हैं। जब इनके फॉलोअर्स देखते हैं तो इन्हें बाबा बाबा कहने लग जाते हैं, और महाराष्ट्र में जैसे पति को साहिब बोला जाता है, तो बाबा साहेब नाम ऐसे पड़ता है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। I would identify Dr. Ambedkar as the primary figure as far as women education is concerned. When we look at the women today achieving immeasurable height, one is reminded of Dr. Ambedkar saying that growth of a nation can only be measured through the progress made by women of the given country. I think women of India owe it to Dr. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar was a man who walked the talk. While he used every position, every platform, and every means he could to advocate and implement his educational philosophy, he also showed by example the way forward by overcoming his own personal challenges and also enabling others through his different educational initiatives. Dr. B.R. Ambedkar believed that education not only theorizes but also offers practical solutions to real-life questions. And to the issues of India's educational system, he offered many practical solutions, such as the idea of collaboration and also the pooling of resources among institutes, the idea of credit transfer. Besides, he also encouraged the spending of public finances in the education sector, while at the same time opposing the commercialization of education. He was a man far ahead of his times and had long envisioned the need for continuous and lifelong learning as well. बाबा साहब ने लेजिस्लेटिव असेंबली में एक सवाल किया कि भाई आप वंचित समाज के बच्चों को जो स्कॉलरशिप देते हो और इस स्कॉलरशिप का उनकी शिक्षा पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि बच्चे जिस वायुमंडल में रहते हैं, जिस वायुमंडल में पलते हैं, वो वायुमंडल शिक्षा के लिए प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। इसलिए उसके लिए सबसे जरूरी है कि उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए। The cultural diversity, educational values, morality, ethos, I think these are the greatest achievements of Indian culture. And this is what Dr. Ambedkar also tried to captain. If you look at his scholarship, he uses very scholarly language, rational language, he cites his sources, he gives long quotations. Ambedkar himself, as a scholar, first of all, he could never be a full-time scholar. He had to either work or so he was serving in the ministry.
He was carrying on his political and social activities, economic activities during the day. Most of his writing took place at night. He never wrote any one full-scale book. There are 17 volumes published by the Maharashtra government, many of them unpublished manuscripts previously. A number of his books were published. He had to most often publish them himself. और यहाँ पे आप जैसे डॉग को देखेंगे, बाबा साहब एनिमल लवर भी थे, क्योंकि बाबा साहब जानवरों से भी बहुत प्रेम करते थे और इसका प्यार से नाम इन्होंने टॉबी रखा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग केवल निजी उपलब्धियों के लिए नहीं किया। वो चाहते तो कहीं बड़ा पद उनको मिल सकता था, कहीं चाहते, एक बार वो एक कॉलेज के मुंबई में एक प्रिंसिपल भी बने, कुछ दिन प्रोफेसर भी वो रहे। इसके साथ साथ उनका जो मुख्य था कि ये सामाजिक बदलाव कैसे हो, जो मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं वो उस जीवन से कैसे उभरें, वो भी मनुष्यता का एहसास के साथ कैसे जी सके। मैं समझता हूं उनके पूरा जो शिक्षा है उसमें इसका जो निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि उन्होंने अपनी शिक्षा में क्या पाया, तो उसमें ये पाया कि दुनिया में मनुष्यता कैसे जीवित हो, कैसे जीवित रहे। और यहाँ पे कम से कम भारत में कि जो एक बहुत बड़ा कई करोड़ लोग, जो इतना बड़ा समुदाय है कि जिनको मनुष्य की तरह नहीं समझा जाता, नहीं देखा जाता, उनको मनुष्यता का दर्जा कैसे मिले, उनको मनुष्यता का एहसास कैसे हो और कैसे वो मनुष्यता, मानवीय गरिमा के साथ वो जी सके। जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि पढ़ो लिखो, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, उसका मतलब था कि उनका दायित्व समाज के प्रति क्या है वो निर्वाह करें। जिस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर जी ने खुद उस शिक्षा का निर्वाह कैसे करना है ये बताया, और जीवन के अंतिम सांस तक वो इस देश के लिए और इस समाज के लिए, वंचित समाज के लिए अपनी सेवाएं दी, चाहे उनके साथ देश ने दिया या नहीं दिया। यानी कहीं भी उनको रिस्पांस वैसा जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो प्रताड़ित होने के बावजूद भी उस ज्ञान का ये समझते रहे कि ये लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, इसको समझाने की ज़रूरत थी, और वो समझाया उन्होंने। तो एजुकेशन का मतलब भी ये होना चाहिए। We must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principle of life. This was Dr. Ambedkar, a man who could picture what was to come and laid out foundations to build a nation rooted in strong educational system and also its constitution. The vision that has gone into the making of our constitution is so very central. When we identify ourselves as the world's largest democracy, I think contribution of Dr. Ambedkar is immense. The way he is holding a copy of constitution close to his chest, I think it is through that document only that we could protect, we could create a sense of celebration for the concept of unity in diversity. जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने देश का संविधान लिखा वो कलम से लिखा है। यानी हमारे प्रमुख समाज के कितने भी लोग थे उन्होंने हमें कलम की शिक्षा दी। उसका मतलब है ज्ञान हासिल किया और उस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा, उस ज्ञान को प्रवाह किया पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। और आज दुनिया का सबसे बड़ा और सफल लोकतांत्रिक रूप में है कामयाब देश है तो वो भारत है, और उसका एक ही एक कारण है कि वो डॉक्टर अम्बेडकर जी का रचित संविधान है। सो इसलिए ये शिक्षा का मतलब मेरे मायने में ये शिक्षा होनी चाहिए, ना कि शिक्षा का मतलब डिग्री हो। Ambedkar was deeply inspired by Buddhism. So when we are studying Ambedkar, when we are looking at the idea of his educational philosophy, we can look at how he derives a great deal from the life and from the teachings of Lord. आप सभी को सादर नमस्कार, जय भीम। आज के इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यक्रम में जब हम बाबा साहब की जन्म जयंती मनाने के लिए एक परिवार की तरह से इकट्ठे हुए हैं, इस
कन्वेंशन सेंटर में, बाबा साहब सभागार में और हमारे रीजनल सेंटर्स में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपसे कि हमारे इस कार्यक्रम का ब्रॉडकास्ट जितने भी हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं उस पे हो रहा है। और मैं ये सूचना मैं दूं आपको कि हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारी माननीय कुलपति मैडम के साथ अभी गार्लैंडिंग करेंगे बाहर, वो पहुंच चुके हैं और अगले कुछ ही पलों में हम इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति से हम इस कार्यक्रम को और सफल बनाने में कामयाब होंगे। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे रीजनल सेंटर्स के साथी और हमारे विद्यार्थी जो सोशल मीडिया चैनल्स पे, चाहे वो फेसबुक हो, एक्स हो या यूट्यूब हो, उन सभी से जुड़कर हमें अच्छा लगा है। और जैसा कि हम जानते हैं, जब हम आज इस महान व्यक्तित्व के जीवन को, उनकी विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनके प्रति अपना संकल्प दोहराने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना। मुझे आपसे प्रार्थना करना है कि अपना मोबाइल फ़ोन जो है आप उसे साइलेंट मोड पे रखेंगे, कई बार उसके से व्यवधान होता है। और जैसा मैं आप को किसी भी क्षण हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। जैसा कि आपको पता है, ये इस कार्यक्रम की आयोजन समिति में ये निर्धारित हुआ कि पूरा अप्रैल का महीना अलग अलग गतिविधियों से बाबा साहब के जीवन को सेलिब्रेट किया जाए, उनके मैसेज को और समझने के लिए। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं 135वें जन्मदिन की, तो ये बात है कि हम हर वर्ष जब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं तो नई नई बातें, चाहे वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात हो, चाहे वो आप बात आ रही है कि कितनी भाषाएं बाबा साहब जानते थे, ऐसे ऐसे पक्ष जो आ रहे हैं, चाहे वो रिजर्व बैंक की बात आप जानते हैं, आप वाटर की बड़ी हम बात कर रहे हैं, जल संसाधन के, उसमें जो भी उनका योगदान है, हर वर्ष हमारे सामने उनके योगदान के नए नए पक्ष, नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। इस बार भी हमने ये कोशिश किया कि हम किस तरह से उस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत हुई ब्लड डोनेशन के माध्यम से, जैसे कि हम जो हर 3 महीने बाद कोई भी स्वस्थ व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है, तो हमने यहाँ पे एम्स की टीम के साथ एक ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत उसमें सफलता मिली, सभी ने उसको सराहा। और क्योंकि बाबा साहब ये चाहते थे कि हम शिक्षा को हम केवल आत्म प्रसिद्धि के लिए, सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट के लिए, सेल्फ प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज निर्माण के लिए करेंगे। तो हमने अपने सभी स्टूडेंट्स से, ख़ास तौर पे जो हमारे स्टूडेंट जो आ नहीं पाते, हमने उनके लिए फोरम क्रिएट किया गया और उसको कैरियर काउंसलिंग के लिए यूज़ किया गया। हमने ये बातें उनके साथ जो है बाबा साहब के साहित्य को ज़्यादा से ज़्यादा उनसे डिस्कस किया। और क्या जो है, इग्नू में सिर्फ हम एक यूनिडायमेंशनल, ये मल्टी डायमेंशनल जो एजुकेशन हमारी पेडागॉजिक मॉडल है, उसको हमने उनसे बेहतर तरह से साझा किया। उनके मन में कुछ संशय के सवाल थे, वो उनको दूर किया। अब मुझे लगता है कि हमारे जो है मुख्य अतिथि किसी भी समय आ सकते हैं। हम इसको विधिवत तरीके से, और जो इसके कार्यक्रम हुए जिसमें कि पोस्टर कंपटीशन था हमारे पास, उसके साथ साथ स्लोगन कंपटीशन, नुक्कड़ नाटक और बहुत सारी गतिविधियां हुई है, उसको हम विधिवत तरीके से आज इस कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री चिराग पासवान जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इज विद अस। Our Honorable Vice Chancellor Professor Uma Kanjilal ji is with us. Dr. Alok Chobe is with us. Yes, this standing ovation is very well deserved. I would request that you keep clapping.
So the stage is set, and we will begin this program on a formal note, as I requested that that will keep our mobile phones on a silent mode. This program is going live at all our regional centers, at all our social media platforms. Thousands and millions of students and people at large are connected to this, and it is because of our chief guest today, Honorable Union Minister Shri Chirag Paswan ji. We would have a formal beginning to this program, and I would request everyone to stand in the honor of IGNOU Kulgeet. I would request our EMPC team to play the Kulgeet, please. शिक्षा का हाल है, जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की, अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की, घर घर है बना शिक्षा का देवालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। जन जन का मान है, सम्मान है, पहचान है। जन जन का मान, सम्मान, पहचान है। राष्ट्र का आह्वान है, बलिदान है, अभिमान है। राष्ट्र का आह्वान, बलिदान, अभिमान है। सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है वादा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महाल। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित। ज्ञान वाणी, ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित। सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। बहुत बहुत धन्यवाद। जन जन का विश्वविद्यालय, इस कुलगीत में जितने भी पहलू हैं, हमारे सारा इग्नू परिवार उसके प्रत्येक पहलू को देश में, देश के हर कोने में, सुदूर क्षेत्रों में किस तरह से सस्ती और अफोर्डेबल और क्वालिटेटिव एजुकेशन को किस तरह से पहुंचाया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर B.R. अंबेडकर के सपनों के भारत को हासिल करने में शिक्षा के मार्ग को कैसे प्रशस्त किया जा सकता है, उसके आपने इस बात को देखा। हमारे साथ हैं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री चिराग पासवान जी, हमारी कुलपति मैडम प्रोफेसर उमा कांजीलाल जी, और हमारे रजिस्ट्रार आलोक चौबे जी, और हमारे जो डिग्निटरीज हैं डायस पे। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस कार्यक्रम के अगले चरण में जो हम दीप प्रज्वलन का जो कार्यक्रम है उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं सर। This light symbolizes knowledge, education, and wisdom, and marks our sincere dedication to the ideas, philosophy of Dr. Ambedkar. I would also request our guests to pay a floral tribute
to Dr. B.R. Ambedkar's photo also after this. When we offer flowers, we rededicate ourselves to the idea, to the philosophy, to the struggle, to the sacrifice, and the legacy which is growing with each passing day. The idea of liberty, equality, fraternity, and the sense of highest justice is something that we imbibe with a resolve that we live each day to further perpetuate that. Big thanks for this, and we'll go forward. The next point is welcome address, and as you know that this the whole month of March was with activities involving our students, involving our staff members here at IGNOU campus, at regional centers and other places. This is the final program in which we'll have the prize distribution and then a special lecture by our chief guest, Chirag Paswan ji. I would request our president, IGNOU SC/ST Teachers Association, to deliver the welcome address, please. Rajesh ji, please. आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेशंस 2025 के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। इग्नू का मिशन में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का शिक्षा दर्शन का रूप दिखता है। इग्नू जन जन का विश्वविद्यालय है और डॉक्टर अम्बेडकर जी भी यही चाहते थे कि एजुकेशन जन जन तक, लोगों तक पहुँचे। मैं हमारे माननीय कुलपति, फर्स्ट लेडी वाइस चांसलर सर माननीय श्री चिराग पासवान जी हमारी प्रथम महिला वाइस चांसलर हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि जो इस साल का डॉक्टर अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेशन 2025 का सेलिब्रेशन रहा, करीब 9 तारीख से लेकर 22 अप्रैल तक हमारा बहुत ही इंटेंसिव कार्यक्रम रहा और सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए वीसी मैम एक प्रेरणा स्रोत रही हैं और उनके नेतृत्व में सारे कार्यक्रम सफल रहे। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की फिलॉसफी, मिशन एवं विजन को हमेशा आगे बढ़ाने का सफल प्रयास किया है। उनकी दूरदृष्टि, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और निरंतर समर्थन के कारण सारे कार्यक्रम सफल रहे। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, सम्मान, बहुत बहुत आभार। अब मैं आज का जो कार्य सौंपा गया है वह है इस समारोह में सभी का स्वागत करना। तो सबसे पहले मैं हमारे आज के समारोह की गरिमा सम्माननीय मुख्य अतिथि भारत सरकार के माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारे निमंत्रण को विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया। मुझे आज भी याद है 2 बार हम लोग उनसे मिल चुके हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग 3 प्रोफेसर्स गए मिलने। फर्स्ट लाइन जो उनका रिएक्शन था, आई वुड लव टू कम टू JNU, प्लीज गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, ही इज सच अ थॉरो जेंटलमैन, ही एक्सेप्टेड आवर इन्विटेशन वेरी जेंटली। आज का यह अवसर हमारे लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है क्योंकि हमारे बीच एक युवा
ऊर्जावान और दूरदर्शी नेता भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पासवान जी, चिराग पासवान जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सभी की ओर से मैं उनका इग्नू परिसर में फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री जी, आपकी उपस्थिति न केवल इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा रही है, बल्कि यह हमारे छात्रों, करीब हमारे यहाँ 3.5 मिलियन स्टूडेंट्स हैं सर, ऑनलाइन भी जुड़े हैं, हमारे यहाँ लाइव जा रहा है सभी चैनलों पर, फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह ऑल ओवर इंडिया, हमारे अब्रॉड में भी 22 सेंटर्स हैं, सब जगह लाइव जा रहा है सर। तो हमारे छात्रों और संकाय के सदस्यों के लिए भी एक प्रेरणा का आप स्रोत हैं सर। आपने अपने राजनीतिक जीवन में युवाओं, शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए जो प्रतिबद्धता दिखाई है वह हम सभी के लिए अनुकरणीय है। इग्नू देश की सबसे बड़ी मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली के रूप में शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के आपके मिशन में निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम यह मानते हैं कि शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम ही नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त उपकरण है, और आज आपके आगमन से इस विचार को और अधिक बल मिला है सर। हम आभारी हैं सर आपके। आपने हम अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण हमें प्रदान किए हैं। हमें विश्वास है कि आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन से हमारे छात्र व शिक्षकगण को नई दिशा और प्रेरणा मिलेगी। माननीय मंत्री जी, हम सब आपको सुनने के लिए बहुत ही बेसब्री से और उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं सर कि हम जब इनविटेशन देने जा रहे थे तो ऑलमोस्ट सब लोग बोल रहे थे कि वो तो हमारे दिल के करीबी हैं सर, इतना लोग प्यार करते हैं सर आपको, सब आपसे मिलना चाह रहे हैं, सब आपको सुनना चाह रहे हैं। एक बार पुनः सर हम सभी की ओर से आपको इग्नू में हार्दिक स्वागत करते हैं और आपकी स्वस्थि एवं यशस्विता की कामना करते हैं। धन्यवाद सर। इसके बाद स्वागत के लिए मैं अपने माननीय कुलपति जी का बहुत स्वागत करता हूं, जो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। उनका मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और निरंतर समर्थन हमेशा मिलते रहा है। मैडम, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। मैं रजिस्ट्रार एडमिन डॉक्टर आलोक चौबे जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये हमेशा ही रेडी रहते हैं। मुझे याद है मैडम वाइस चांसलर बहुत बिजी थी और हमारे एक्टिंग वाइस चांसलर भी बिजी थे। 6 दिसंबर को वो तुरंत इमीडिएटली विदिन 5 मिनट्स वो अग्री हो गए कि मैं आपके हाथ आऊँ फंक्शन के लिए। बहुत ही कमिटेड हैं सर, थैंक यू सो मच सर। मैं रजिस्ट्रार ACD प्रोफेसर शशि शाह, OSD डॉक्टर VS नेगी और दूसरे रजिस्ट्रार्स का भी स्वागत करता हूँ। मैं सभी स्कूल के निदेशकों, प्रभागों के प्रमुखों, क्षेत्रीय निदेशकों और उनके संबंधित स्टाफ सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सारे एसोसिएशंस, इग्नू-30, इग्नूटा, इग्नूसा, इग्नू SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन, ईस्टा मेंबर्स का भी दिल से स्वागत करता हूं। यूनिवर्सिटी का पूरा परिवार, हर व्यक्ति का स्वागत और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में हमारे राइट हैंड साइड में कुछ बच्चे बैठे हैं। आज के बच्चे देश के आने वाले कल का भविष्य हैं और जो चमकदार चेहरों को आज पुरस्कार मिल रहे हैं, उनकी प्रतिभाओं के प्रदर्शन की बुनियाद पर हम यह कह सकते हैं कि वे कल देश का मान बढ़ाएंगे। हो सकता है कि वे अपनी ज़िंदगी में बड़ी सफलता, नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करें, लेकिन हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वे अच्छे इंसान भी बने। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। जो आपने हमारे मुख्य अतिथि के बारे में जो शब्द कहे वो एक एक शब्द सही है और किस प्रकार जो है उनका नेतृत्व से पूरे देश में एक स्थिति बेहतर हो रही है। हम जो है हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसमें आज के इस कार्यक्रम में को देखा जा रहा है हमारे रीजनल सेंटर्स में, जो 3.5 मिलियन स्टूडेंट्स की बात हुई, उसके अलावा इससे भी बहुत अबाउट 4 मिलियन से भी ज़्यादा हमारा जो एक एल्यूमनाई परिवार है, उसकी तरफ से हम आज हमारे मंत्री जी को हमारी प्रेम की एक भेंट देना चाहते हैं। मैं हमारी जो है ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे चीफ गेस्ट को
फैसिलिटेट करेंगे। This bouquet, sir, represents our love and respect for you. And then there is a shawl and a memento of Gautam Buddha. As you know, Dr. Ambedkar called Gautam Buddha as his guru. And all that he learned was from the teachings of Buddha. So we are very privileged to give this to you, sir. Every time you will see this memento, you will remember this prestigious university and then the life and contribution of Dr. Ambedkar. Next, I'll request Rajesh ji to give a planter to our Honorable Vice Chancellor, Madam. And we have our President, Mohanveer Gautam ji, who comes from IGNOU employees, IGNOU SC/ST Employees Welfare Association. He will give a shawl to our Honorable Vice Chancellor. Thank you, Madam. You are always inspiration for us. I'll also request our President, IGNOU SC/ST Employees Welfare Association, to facilitate our Registrar, Dr. Alok Chaube ji, please. We acknowledge your contribution, Alok ji, always with your problem-solving attitude. Thank you very much. Yes, now the next thing is that we are acknowledging all those people who have won prizes. As I told you that there were many activities, including blood donation, including slogan writing, poster competition. So we will begin with awarding the poster competition winners. Poster competition, there were two groups. Group A, which included children up to 10 years, and we have winners of that. I'll announce their names, and they can come and receive it from our Honorable Chief Guest and our Honorable Vice Chancellor. So the first prize for this category, Group A, Aditya Singh. First prize goes to Aditya Singh. Aranya is the next person, Aranya Azad. Aranya Azad. Pratham Raj is the next person, Pratham Raj. We have two consolation prize winners also, Mishka Sahu and Dhruti. These future leaders are very important. Group B is children between 11 to 18 years. We have Kavya Vijayakumar, who won the third prize. Kavya, we are very proud of you. Please come and receive this trophy from our chief guest, Shri Chirag Paswan ji. We have Om Nair. Second prize. And we have Kanishk, who gets the first prize in this category. Kanishk, you have made great effort. We will have your poster
displayed at the most conspicuous place in this university, and the poster that you have made will be remembered for a long, long time. In the consolation prize, we have this photo is very important, sir. Yes. We have Ghanishka Singhal also. And Tanisha Srivastav. I'll request B.L. Meena ji to come and receive the prize on behalf of Ghanishka. The way these future leaders are participating in these events is a reflection that the legacy of Dr. Ambedkar is in secure hands. Kanishka is perhaps attending the school, so father is receiving the trophy. We have Group C will have Vishal Kumar Agarwal. Vishal Kumar Agarwal, who gets the third prize. Shipra Chauhan, who gets the second prize. So Vishal Kumar Agarwal, Group C, third prize. Shipra Chauhan, second prize. And can we invite Bhavana on the stage for the first prize in this category? I'll request Harish ji to come and receive this prize on her behalf. I think with this, the slogan poster competition awardees have got their trophies, and Dr. Arvind Shakya deserves, acknowledgement and appreciation because he was the convener of the committee who conducted all the tasks in a very seamless manner. I'll now announce the names for the slogan competition winners. Group A, below 18, we have Divesh to begin with. Divesh gets the third prize in this category. Divesh. We have Divesh Shivam Gautam. Shivam Gautam gets the second prize. Please come to the dais. And then we have Kartike. Kartike, who gets the first prize. Please give him a huge round of applause. Kartike, I think the judges appreciated and acknowledged that you will get the first prize. Thank you very much for your participation. We have Group B, which is above 18 years of age, and in this, Koel gets the third prize. Koel and Dr. Reena Kumari. Yes. Manjeet Khatri is the second prize winner in this. Manjeet Khatri, please, to come on the stage. We will also invite Kumud Bandhu, who gets the first prize in this.
if somebody has not got the trophy, we will, we have arrangements that they will get it, if they have not managed to come here. With this, we will move on to the next step of the program. And sir, because we really value your presence, we would like to use this presence for the purpose of release of our self-learning material, the study material through which we connect to our students and we take care of their educational needs. This material that we have is developed by School of Agriculture, and this program is called BSc, Food Science and Quality Management. I'll request the director and the coordinator to come and be a part of this release. This is one of its kind programs developed in accordance with the UGC's 4-year graduate program guidelines, FYUP. The study materials will have been carefully crafted to provide learners with a comprehensive knowledge and skills on food science, food safety, incorporating Indian knowledge system, smart art, QR code-based additional resources, and self-performing activities in the form of activities manual in addition to the practical manual. Sir, you look after this ministry and our staff. This material that we have developed at the bachelor level and the postgraduate level will always be available for your leadership, for your guidance. Sir, like in the heat, one more second, sir, please. We in the heat of this month of April, we had a play Nukkad Natak on the life and philosophy of Dr. Ambedkar. This team wants to have a photo with you. We have certificates for them, but we'll give them later on. So for this picture, these young kids, I remember the way these kids, celebrated the contribution of Dr. Ambedkar, particularly for the purpose of women empowerment. I measure the progress of a society by the degree women have contributed to that. So that is very important. Very young in their age, but very tall in their understanding of Dr. Ambedkar's philosophy. So the way you are embracing them will go a long way in boosting their confidence. Thank you very much, sir. Okay. So now that moment has arrived, our chief guest, our chief speaker has taken his valuable time to address this important gathering. As you know, sir, we have received this feedback that our broadcast is a big time hit. So many people are liking you on YouTube, Facebook, and everyone is appreciating your presence here, sir. Thank you very much. And before I invite you to connect to all of us here and then people across the platforms, I'll read something about you. Everyone knows about you, sir. Everyone is connected. So much of deep love and admiration for you. This may sound formal, but everyone has
come to see you and connect with you. I'll read your introduction to begin with. Our Honorable Minister, Shri Chirag Paswan ji, who is heading the food processing industries in the Government of India, is a distinguished leader shaping the future of India's food processing sector. Representing the Hajipur parliamentary constituency in Bihar in Lok Sabha, he has been serving as a member of parliament since 2014. Shri Paswan is also the president of Lok Janshakti Party, Ramvilas, upholding the remarkable legacy of his father, the late Shri Ramvilas Paswan ji, a revered statesman in Indian public life. Since embarking on his journey in public service, Shri Paswan has held pivotal positions in parliamentary committees addressing health, industry, environment, and education. These responsibilities reflect his deep commitment to addressing critical national challenges with a collaborative and forward-thinking approach. As Union Minister, Shri Paswan envisions India as a global food basket. He leads transformational efforts focused on reducing agricultural wastage, fostering investment, and integrating cutting-edge technology. By championing food safety and bolstering supply chains, he ensures Indian food products align with the highest global standards. His initiatives aim to drive economic growth while ensuring accessibility to quality food products, both domestically as well as internationally. Shri Paswan ji's tenure is defined by an unwavering commitment to social justice and inclusive development. His leadership ensures that progress in the food processing sector translates into equitable opportunities for all, and particularly the most vulnerable population. Dynamic and visionary, Shri Chirag Paswan ji is at the forefront of India's evolution into a global leadership in food processing, guided by the principles of innovation, sustainability, and inclusivity. His efforts not only advance economic progress, but also pave a way for more equitable and prosperous society. In recognition of his growing influence in national policy and public life, the Indian Express has ranked Shri Chirag Paswan 59th in 2025 list of India's 100 most powerful personalities. We are so grateful for your presence, sir, and I'll not stand between you and our audience here and our regional centers. Please come and enlighten us on the theme. Thank you very much, sir. A big round of applause once again. Well, good afternoon, everybody. सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा कि आप सबकी वजह से मुझे ये मौका मिला यहाँ पर आने का। इच्छा दशकों से थी, ख्वाहिश तमन्ना काफ़ी समय से थी, और जितना मैंने इग्नू के बारे में, इस संस्थान के बारे में जितना सुना, जितना पढ़ा, जितना जाना, आज यहाँ आकर अनुभव किया कि वो सब कम था। आप सब ने जिस तरीके से समाज के प्रति समर्पण में अपना योगदान देने का काम किया, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज मैं आप सबके सामने इस मंच पर खड़ा हूँ, और इसके लिए मैं वीसी मैडम का विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा, उमा कांजीलाल जी का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये अवसर दिया। यहाँ पर मौजूद डॉक्टर आलोक चौबे जी, रजिस्ट्रार साहब का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर राजेश कुमार, प्रेसिडेंट इग्नू SC/ST टीचर्स एसोसिएशन, जिन्होंने सबसे पहले ये मेरे संज्ञान में दिया कि यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि आप आएँ। राजेश जी का धन्यवाद। मोहन वीर गौतम जी का मैं विशेष तौर पे धन्यवाद दूंगा कि उनकी वजह से आज मेरा यहाँ पर आना संभव हुआ। मौजूद यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी, स्टूडेंट्स और सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग देश के कोने से जुड़े हुए तमाम साथी, आज जब हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों का स्मरण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि जिस तरीके से इग्नू के द्वारा एक लंबे समय तक एक दिवसीय कार्यक्रम ना रखते हुए
जो ये श्रृंखला तैयार की गई है और जिस खूबसूरती से बाबा साहेब की सोच, उनके विचारों को बच्चों के जहन में इतनी सरलता, इतनी सहजता से उन्होंने डालने का काम किया, पेंटिंग के माध्यम से, स्लोगन्स के माध्यम से, अलग अलग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, इन तमाम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। और ये ज़रूरी है, जिस तरीके से देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है, इस बात की चिंता हम सबको होनी चाहिए कि क्या हम उन विचारों को अपनी आने वाली पीढ़ी में उतनी खूबसूरती से संजो पा रहे हैं जिस खूबसूरती से संभवतः हमारी पिछली पीढ़ी ने, हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को समर्पित करके गए। मैं मानता हूं वो दौर अलग था, वो समय अलग था, परिस्थितियां अलग थी। उस परिस्थिति के हिसाब से कई बातें हैं जो संभवतः आज वैसी नहीं हों, पर यह ज़रूरी है कि हम अपने संस्कारों से जुड़े रहें। उस जड़ को जानना ज़रूरी है जिस जड़ से आज इतना बड़ा ये वृक्ष बना है। आज जब हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों की बात करते हैं, हम लोग को उन परिस्थितियों को याद करना, स्मरण करना, समझना ज़रूरी है जो संभवतः शायद आज की पीढ़ी में रह रहे लोग नहीं कर पाए होंगे। वो दौर, जिस दौर में समाज का एक ऐसा वर्ग जिसको अनुसूचित जाति कहा जाता था, जिसके साथ भेदभाव छुआछूत के आधार पर होता था, अनटचेबिलिटी एक फैक्टर होता था, और अनटचेबिलिटी इस कदर इस हद तक कि छूना तो भैया बहुत दूर की बात है, देखना तक पाप माना जाता था। गांव से बाहर रखा जाता था, कमर पे झाड़ू बांधी जाती थी कि अगर जिस रास्ते से वो चले तो अपने पगचिन्ह मिटाते हुए चलें। गले में घंटी बांधी जाती थी कि अगर गांव में अगर वो प्रवेश कर रहे हैं तो गांव के लोगों को इस बात की जानकारी हो और वो खिड़की दरवाजे बंद कर लें। इन परिस्थितियों से एक ऐसा व्यक्ति निकला जिन्होंने इन परिस्थितियों का सामना करते हुए और कतई उसके साथ समझौता नहीं किया, उसके सामने हार नहीं मानी, शीश नहीं झुकाया, और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विचार को मजबूती से आज भी पीढ़ियों तक उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। एक बार जोरदार ताली डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की। ये बातें आज इस मंच से मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये विचार आने वाली पीढ़ी तक जाना जरूरी है, जो संभवतः सोशल मीडिया के ज़माने में, ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में शायद हम लोग नहीं अनुभव कर पाते हैं कि किन संघर्षों से डॉक्टर बाबा साहेब निकले। मैं अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का भी नाम लूंगा कि किन परिस्थितियों का सामना करते हुए इन्होंने देश में, दुनिया में एक अपनी पहचान बनाने का काम किया। इन्होंने कभी उन परिस्थितियों से किसी तरीके का समझौता नहीं किया। ये बात हमारी आने वाली पीढ़ी को समझना जरूरी है, क्योंकि आजकल मैं बच्चों में देखता हूं छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एग्जाम में 2 नंबर कम आए उसको लेकर चिंतित हो जाते हैं, और कभी कभी तो उत्तेजना में या परिस्थितियों वश कुछ ऐसे कदम उठा लिए जाते हैं जिसकी कल्पना भी शायद परिवार का सदस्य होने के नाते हम लोगों ने नहीं की होंगी। उस पीढ़ी को यह बताना जरूरी है कि अगर आप 2 नंबर कम आने को अगर आप चुनौती समझते हो, संघर्ष समझते हो, तो याद करो उस दौर को, जिस दौर में मेरे पिता 2-2 नदी पार करके जाते थे, सर पे बस्ता रखकर जाते थे स्कूल शिक्षा हासिल करने के लिए। आज तो फिर भी हम सब लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग के पास वो सुख सुविधाएं हैं, पर अगर उसके बाद भी अगर हल्की सी तकलीफ से हम लोग इतना विचलित हो जाएंगे, इतना परेशान हो जाएंगे, तो जरूरी है उन महापुरुषों से सीख लेने की जिन्होंने विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का डट कर सामना किया, और ना सिर्फ अपने जीवन को सुधारने का काम किया बल्कि अपने साथ साथ पूरे समाज, पूरे वर्ग के जीवन को उन्होंने संभालने का काम किया। इस उदाहरण को हम लोग को याद करके अपने व्यक्तित्व को ऐसे निखारना है कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ अपना भविष्य बल्कि अपने यार, दोस्त, परिचित, रिश्तेदार, उनके भी भविष्य को हम सुधार पाएं। इस सोच के साथ हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार करना है, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी शिक्षा का। और मैं सिर्फ किताबी शिक्षा का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं,
स्कूल में जाके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीख जाएं, स्कूल में जाके हम लोग टेबल्स याद कर लें, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एक ऐसी शिक्षा जो आपको समाज की अलग अलग विचारधारा के साथ जोड़ती है, एक ऐसी शिक्षा जो सही मायनों में आपके भीतर सामाजिक न्याय की चिंगारी को जलाती है, एक ऐसी शिक्षा जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, बेहतर मनुष्य बनाती है, जहां आप हर परिस्थिति में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जहां बिना किसी भेदभाव के, भेदभाव जातीयता के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, किसी भी तरीके का, और जब हम लोग ग्लोबली कंपेयर करते हैं, रेसिज्म अलग अलग तरीके के भेदभाव है। और तकलीफ इस बात की होती है कि आज भी 21वीं सदी में आने के बाद भी आज भी गाहे बगाहे हम लोग को कई इस तरीके के उदाहरण दिखते हैं। ग्लोबली हो, नेशनली हो, गांव में हो, आज भी अलग अलग स्तर के भेदभावों का सामना हम लोग को करना पड़ता है। आज भी उदाहरण है जहां पे महिला पुरुष के आधार पर महिलाओं को कमजोर दिखाने का प्रयास किया जाता है। आज भी उदाहरण दिखते हैं जहां पे रंग भेद के आधार पर, रेसिज्म के आधार पर काले गोरे के बीच में भेद किया जाता है। आज भी ऐसे उदाहरण हम लोग को मिलते हैं जहां पे जाति के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं। और हम लोग अपने आप को 21वीं सदी में लेकर जाने की बात करते हैं। हम लोग चांद सूरज तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, दूसरे ग्रहों पे कॉलोनी बसाने की बात कर रहे हैं, चंद्रमा पर एक पूरा जीवन बसाने की हम लोग बात कर रहे हैं। और जहां एक तरफ हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति को घोड़े पे चढ़ने से इसीलिए रोकते हैं क्योंकि वो दलित समुदाय से आता है। एक परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से इसीलिए रोकते हैं क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग से आता है। ये सोच आज भी है। समय के साथ कई परिवर्तन हम लोगों ने देखे, पर जब तक मानसिकता में परिवर्तन नहीं आएगा, और इसी सोच को हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एडवोकेट करते रहे। और जरूरी है ऐसे मंचों का तैयार होना, जरूरी है ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण करना जो आने वाली पीढ़ी का परिचय उनकी सोच के साथ कराए। कितनी खूबसूरती से बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। ये मूल मंत्र इतने खूबसूरत हैं, एजुकेट, एजुकेट, यूनाइट। जो व्यक्ति इन बातों को समझ गया वो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। शिक्षित होना आपको, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस देता है कि आपको जानकारी है, आप अनजान नहीं है उस विषय से। इसीलिए हर विषय की जानकारी होना जरूरी है। और यहां पे जितने छात्र मौजूद हैं और जितने छात्र वर्चुअली जुड़े हुए हैं, उन सब से मैं आग्रह करूंगा कि मैं सिर्फ किताबी शिक्षा की बात नहीं कर रहा, अवेयर होना जरूरी है। पॉलिटिकली, सोशली, ग्लोबली क्या चल रहा है देश दुनिया में, हर विषय की जानकारी रखना जरूरी है। आजकल धीरे धीरे, मुझे पता नहीं आंकड़े सही हैं कि नहीं है, बट जो ट्रेंड, पढ़ने का ट्रेंड, न्यूज़पेपर्स पढ़ने का ट्रेंड, मुझे याद है एज अ किड, एज अ यंग बॉय, मेरे फादर मुझे हमेशा बोलते थे, पापा हमेशा कहते थे कि अखबार जरूर पढ़ा करो। अखबार में देश, दुनिया, समाज, हर तरीके का, और साथ ही में जब अखबार पढ़ते हो तो तुम्हारा उच्चारण, तुम्हारा व्याकरण सब स्पष्ट होता जाएगा। कोई कठिन शब्द आते हैं तो आओ पूछो मुझसे, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ो। जानकारी होना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। आज देश में, दुनिया में क्या चल रहा है, कभी कभी आई गेट सरप्राइज जब बच्चे मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि भैया हमें तो पॉलिटिक्स की ज़्यादा जानकारी नहीं है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स। और ये एक समय तो ऐसा था कि ये फैशन बन गया था, पॉलिटिक्स की जानकारी ना होना आपको बहुत कूल और हैपनिंग दिखाता था। पर ये गलत सोच है। आप जिनसे परिवर्तन की अपेक्षा रख रहे हैं, अगर उन्हीं की आप जानकारी नहीं रखिएगा तो कैसे उस परिवर्तन में सहभागी बनिएगा। आप अगर एक सोच से, एक विचारधारा से सहमत नहीं है तो उस सोच, उस विचारधारा को बदलने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अपने जाति के नेता का चुनाव कर रहे हैं। ये गलत है। आपको इस बात की जानकारी होना जरूरी है, ये सीखना जरूरी है, ये अवेयरनेस आपको जरूरी है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सिखा कर, उन्होंने कहा संघर्ष करो, घुटने मत टेको, नतमस्तक मत हो जाओ, सवाल करो, पूछो। और ये सवाल हर किसी को करने चाहिए। मैंने मेरे पिता के सामने एज अ किड दुनिया भर के सवाल पूछे, और मैं अभी भी पूछता हूं।
भले वो मेरे प्रधानमंत्री हो, गठबंधन के भीतर हो, मेरी पार्टी में हो, मैं प्रश्न करता हूं, मैं पूछता हूं, मैं सवाल करता हूं, और ये सवाल करना जरूरी है। जब आप सवाल नहीं करते, जब आप प्रश्न नहीं करते, तो आप उस व्यवस्था से समझौता करने लग जाते हैं। ये गलत है। और इसी संघर्ष का जिक्र बाबा साहब ने किया था। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। यूनाइट होना बहुत जरूरी है। और भारत की तो खूबसूरती यही है, बचपन की किताबों में हम लोग को सिखाया जाता है, जिसको हम लोग को चरितार्थ करना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत जैसा खूबसूरत कोई देश नहीं हो सकता जहां पे हमें इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, पर उसके बावजूद जब भारतीय होने की बात आती है तो हम सब एकजुट होते हैं, और इस एकजुटता को हम लोग को और मजबूत करना है। कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी दुनिया में, जो इस एकता को तोड़ने का निरंतरता में प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। ऐसे में ये हमारा समर्पण एक दूसरे के प्रति ही हमें एकजुट रखेगा। और जब तक हम लोग एकजुट हैं, देश क्या दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं तोड़ सकती। जरूरत है हमें एकजुट रहने की, जरूरत है हमें यूनाइट रहने की। और इस एकता के साथ, इस एकता के साथ नेशनली तो क्या, ग्लोबली भी जो भी चैलेंजेस आए, हम उस सब का सामना करेंगे। पर जरूरत है हमें अपने भीतर ये भावना लाने की, अपने बच्चों के भीतर, खास तौर पर आने वाली पीढ़ी के भीतर इस भावना को लाने का, और इस बात को बताने का कि सही मायनों में एकता में कितनी ताकत है। और इन तमाम बातों के मूल में पुनः मैं जाऊंगा, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा के अभाव में दशकों तक हम लोग को प्रताड़ित करने का कार्य किया गया। दशकों तक हम लोगों में भेदभाव की भावना को बनाए रखने का काम किया। और आज भी आप महसूस करेंगे, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप जाइएगा, जहां पे अशिक्षा का भाव है, वहां पे इन्हीं तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करके हमें एक दूसरे से अलग करने का प्रयास किया जाता है। पर ऐसे में आप सबके माध्यम से मैं ये आग्रह करूंगा कि बच्चों को जितना हो सके गांव परिवार से जोड़ के रखने की जरूरत है। उनको वो संस्कार देने की जरूरत है जो संभवतः हम सबको हमारी पिछली पीढ़ी, हमारे पूर्वजों ने दिए। हम लोग तो भैया उस दौर को भी जानते हैं जब मोबाइल फोन नहीं होते थे। आज शायद ही कोई बच्चा कल्पना कर सकता है बिना स्क्रीन टाइम के अपने जीवन की। दिन में जब तक कपल ऑफ आवर्स का स्क्रीन टाइम नहीं मिलता, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, व्हाट्सएप चैट्स पे दोस्तों के साथ वीडियो कॉल करके, इंस्टाग्राम फेसबुक चला के, जब तक वो नहीं होता हम लोग सोचते ही नहीं, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। पर ये हमारी ही जिम्मेदारी है उस पीढ़ी को समझाने की कि भैया एक जीवन ऐसा भी था जो हम लोगों ने देखा, और हम लोग शायद वो आखिरी पीढ़ी होंगे उस कड़ी की, उस लिंक की, जिसको बिना सोशल मीडिया के भी जिंदगी पता थी, जहां हम लोग के पास एक कॉमन पॉइंट होता था कनेक्ट करने का। जब हम लोग वीकेंड्स पे जब बैठते थे तो हम लोग के पास वो चर्चा के लिए हम लोग का एक सीरियल होता था, या संडे को आई हुई एक फिल्म होती थी। आज तो इतने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने ऑप्शंस हैं आपके पास कंटेंट के नाम पे, कि आपके पास कोई न्यूट्रल पॉइंट ही नहीं है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का। ऐसे में घर, परिवार, गांव ही आपको जोड़ते हैं। मैं हमेशा प्रयास करता हूं अगली पीढ़ी के जितने बच्चे हैं मेरे घर में, उनको गांव लेकर जाऊं, उनको गांव का जीवन दिखाऊं, उनको गांव खेत से जोड़ूं। और जब तक हम ये प्रयास नहीं करेंगे, गांव और शहर के बीच की दूरी कभी कम नहीं होगी। और ये भी उन्हीं एक भेदभावों में से है जिसके खिलाफ बाबा साहब संघर्ष करते रहे। गांव और शहर की दूरी को भी कम करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। और ये दूरी सिर्फ मानसिक है, सामाजिक कतई नहीं। धीरे धीरे आज की तारीख में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हो रहा है। और जब मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की कल्पना करते हो, तभी संभव है जब भारत का हर एक गांव विकसित होगा। पर गांव में रहने वालों के प्रति शहर में रहने वालों की मानसिकता, उस सोच को हम लोग तभी बदल सकते हैं जब हम अपनी अगली पीढ़ी को गांव के साथ जोड़ेंगे। आज की तारीख में घर परिवारों में हम लोगों ने बोलचाल की भाषा को ही इंग्लिश बना दिया। घर पे अगर हम लोग अपनी अगली पीढ़ी बच्चों से बात करते हैं तो तब तक हम लोग मॉडर्न और कूल दिखते ही नहीं है जब तक हम लोग अंग्रेजी में बात ना करें। ऐसे में धीरे धीरे हम अपनी मातृभाषा को खोते रहेंगे। अगर अगली पीढ़ी ही नहीं समझेगी हमारी मातृभाषा को, और वो कोई भी हो, वो पंजाबी हो, वो तमिल हो, वो भोजपुरी हो, मैथिली हो, कोई भी भाषा हो,
पर जब तक हम अगली पीढ़ी को वो भाषा नहीं सिखाएंगे, कैसे वो पीढ़ी उस भाषा को जानेगी? और अगर उस पीढ़ी ने इस भाषा को नहीं समझा तो उसके आने वाली पीढ़ी तो जानेगी नहीं, और धीरे धीरे ये तमाम भारतीय भाषाएं लुप्त हो जाएंगी। इंग्लिश तो बच्चा सीखेगा ही सीखेगा, स्कूल जाएगा इंग्लिश सीखेगा, संभवतः हिंदी भी सीखेगा, पर अपनी मातृभाषा घर में सिखाने का ये तमाम वो उदाहरण हैं, ये तमाम वो उदाहरण हैं जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, गांव को शहर के साथ जोड़ेंगे, अमीर को गरीब के साथ जोड़ेंगे, और तब जाकर हम उस समाज का निर्माण कर पाएंगे जिसकी कल्पना दशकों पहले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देखी थी। आज भी उनके जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि परिस्थितियां बहुत अनुकूल हो गई थी। बाबा साहब को जीते जी तो संघर्ष करना ही पड़ा, उनके जाने के बाद भी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उसके बाद भी लंबे समय तक ऐसी सोच, ऐसी विचारधाराएं थी जो उनके जाने के बाद भी उनके साथ भेदभाव करती थी। आज मेरे परिचय में बताया गया कि 2014 से मैं सांसद हूं। 2014 लगभग 11 साल होने को आए, तीसरी बार का सांसद हूं, और एक तीसरी बार का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये कल्पना से परे है कि संविधान के रचयिता, जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिसके आधार पर वो संसद चलती है जिसमें हम सारे सांसद जाकर बैठते हैं। एक समय, एक दौर ऐसा था जब उनकी प्रतिमा तो भूल जाइए, उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी, और उनके जाने के लंबे समय के बाद तक का मैं जिक्र कर रहा हूं। टिल 89 हमारे इस भारतीय संसद में बाबा साहेब की एक तस्वीर तक नहीं थी। उनके जाने के बाद भी सोचिए किस तरीके से भेदभाव का उनको सामना करना पड़ा। यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, पर मैं कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप मैं इस मंच से मैं कतई नहीं करूंगा, पर हां, ऐसे में मैं उन लोगों का सम्मान इस मंच से जरूर करूंगा जिन्होंने उनके जाने के बाद भी उनके और उनके विचारों के लिए संघर्ष करने का काम किया, जिसमें एक नाम मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का भी था। जिस 89 का मैं जिक्र कर रहा हूं, उस सरकार में वो श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, और ये जिम्मेदारी उन्हीं के विभाग की थी। और पहली बार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का तैलचित्र भारत के सेंट्रल हॉल में लगा, तो वो उसी सरकार में था जिसमें मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी कल्याण मंत्री थे। ताज्जुब मुझे इस बात का नहीं कि उनकी प्रतिमा नहीं, उनकी तस्वीर नहीं, पर ताज्जुब इस बात का होता है कि जब एक पार्टी, तो भूल जाइए एक परिवार के 3-3 नेताओं की तस्वीर उस सेंट्रल हॉल में होती है और संविधान के रचयिता की तस्वीर नहीं होती। आज जब बाबा साहब को हम लोग गर्व से कहते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये भारत रत्न से सम्मानित उनको उसी साल में किया गया, 89 में। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा की गई 89 में। ये तमाम वो विषय हैं जो उनको सम्मान देने के नाते वो सांकेतिक कदम है जो आने वाली पीढ़ी को बताता है कि ऐसे महापुरुषों का सम्मान करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप उनका सम्मान करते हैं तो आप उनकी सोच विचार से भी आप जुड़ते हैं। अभी जब मैं आया, यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई थी, उसके ऊपर माल्यार्पण करना सिर्फ एक उनको सम्मान देना नहीं है, पर आने वाली पीढ़ी में हम कल रहे ना रहें, पर हमारी आने वाली पीढ़ी कल को जब आएगी और बाबा साहब की प्रतिमा देखेगी और उस पर माल्यार्पण करेगी, तब शायद एक बार पूछेगी कि कौन थे ये, क्या किया इन्होंने हमारे लिए। और तब जब हम उनको बताएंगे, वो उस विचार से जुड़ पाएंगे, और उस विचार से जुड़ना आज की हमारी पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग तुरंत हर बात पे डिप्रेस हो जाते हैं, एजिटेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। ये धैर्य, इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते जो बाबा साहब में था। और उस धैर्य को जिसने अपने जीवन, अपने व्यक्तित्व में चरितार्थ कर लिया, हम करेंगे, रिएक्ट हम करेंगे, पर समय आने पर करेंगे। उसके लिए हम अपने आप को तब तक उतना तैयार, उतना मजबूत करेंगे। बाबा साहब के क्वालिफिकेशंस देखिए, पन्ना भर जाता है, उनके क्वालिफिकेशंस खत्म नहीं होते। सोचिए एक इतना शिक्षित व्यक्ति, एक इतना जानकार व्यक्ति, और उसने अपना पूरा जीवन किस चीज के लिए झोंका? सामाजिक न्याय के लिए। आज अगर हम जैसे, मैं भले कितना पढ़ा लिखा होता, कुछ होता, संभवतः शायद मैं देश में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता अगर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते। आज संभवतः शायद मैं चुनाव भी नहीं लड़ पाता अगर उन्होंने समाज में इन कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष नहीं किया होता। आज मुझे खुशी होती है जब मेरी सरकार बाबा साहेब के उन पग चिन्हों का सम्मान करती है। हर उस जगह जहां पे बाबा साहेब गए, उन तमाम स्थलों को चिन्हित कर उनको विकसित करने का कार्य किया गया।
भले मऊ में जहाँ पे उनका जन्म हुआ, या लंदन जहाँ पे उन्होंने शिक्षा हासिल की, या चैत्य भूमि हो, या नागपुर में दीक्षा भूमि हो, या अकबर अली रोड पे जहाँ पे उनका निवास था, उन तमाम स्थलों को चिन्हित करके उनको विकसित करने का कार्य सिर्फ इसी सोच के साथ किया गया कि आने वाली पीढ़ी समझ सके कि क्या थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके विचारों पर चल सके। तभी हम समाज में समरसता का भाव ला सकेंगे। जब तक समाज में समावेश नहीं होगा, जब तक सब इंक्लूसिव सोच के साथ नहीं चलेंगे, एक दूसरे की मदद करने की सोच के साथ एक दूसरे का हाथ नहीं थामेंगे। पर कभी कभी उदाहरण मिलते हैं कि एक दूसरे की मदद नहीं बल्कि एक दूसरे के सर पर पांव रखकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जिस दिन उस सोच को बदलकर एक दूसरे का हाथ थामकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, मुझे लगता है हम लोग वो समाज, उस देश का निर्माण कर पाएंगे जिसकी कल्पना कभी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने की थी, जिसमें बहुत खूबसूरत योगदान आप सबके द्वारा किया गया। मैं एक बार इग्नू का फिर से धन्यवाद करूंगा, जिस तरीके से समाज और देश के निर्माण में एक अहम भूमिका दशकों से इग्नू के द्वारा निभाई गई, जहां पे देश में ही नहीं दुनिया में कैसे लोगों को शिक्षा के साथ जोड़ा जा सके, उसके लिए कम संसाधनों में एक खूबसूरत व्यवस्था तैयार करने का कार्य इग्नू के द्वारा किया गया। मैं दोहराता हूं, लंबे समय से मैं खुद इस अवसर की तलाश में था कि कब मुझे ये सौभाग्य मिले और मैं इस खूबसूरत धरती को आके मैं नमन करूं, यहाँ पर मैं आऊं। ये मेरे लिए आज सौभाग्य की बात है कि मैं आज सबके बीच आया, और इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है कि मेरे नेता ने जिसको अपने यहाँ नेता माना, उनके विचारों पर, उनके विचारों को आज स्मरण करने की सोच के साथ मैं यहाँ आया हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये उस श्रृंखला की एक शुरुआत मात्र है और आने वाले दिनों में आप और ज़्यादा मुझे यहाँ पर आमंत्रित करेंगे और ज़्यादा मुझे मौका देंगे यहाँ आने का। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ, वीसी मैम का फिर से धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पे तमाम मौजूद फैकल्टी मेंबर्स का धन्यवाद करता हूँ। और जाने से पहले ज़रूर हम लोग यहाँ से ये संकल्प लेकर जाएं कि अपनी इस पीढ़ी में तो हम पूरा समर्पण देंगे ही देंगे, पर अपनी आने वाली पीढ़ी को भी उस समर्पण भाव के लिए तैयार करेंगे जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के एक एक विचार, एक एक सपने को पूर्णतः धरातल पर उतारकर उनके सपनों के समाज को, उनके सपनों के देश का निर्माण कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। I think he deserves a standing ovation. So we are very grateful the way you have engaged with our audience at the headquarters and all those people who are watching this program at our regional centers. Thank you very much, sir, once again. The way you have spoken, sir, I mean, if I give you एक मेरे मुझे जो जिस तरह से आपने सर एक इग्नू के एक एम्बेसडर की तरह से बात करी है आज, हम अब बहुत सिक्योर महसूस कर रहे हैं कि भारतीय संसद में आप जैसा प्रतिनिधित्व, हमारा प्रतिनिधि वहाँ है कि जो भी दूर शिक्षा के जो इस शब्द में जो हम ओपन वर्ड यूज़ करते हैं, उससे जुड़ी हुई जो भी भ्रांति है, जो भी संशय, जो भी मिसकंसेप्शंस जो लोगों के दिमाग में है, वो अब दूर होंगी। जिस तरह से आपने सर अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एक व्याख्यान दिया, और जब हम 21वीं शताब्दी में बाबा साहब की बढ़ती हुई विरासत की प्रासंगिकता को बात समझने चाह रहे हैं, आपने हमें न सिर्फ दिमाग में कुछ विचार दिए बल्कि हमारे दिलों को छुआ है सर। हम इसको बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। अगर मैं उससे जुड़ा हुआ एक कविता मैं कहूँ तो आपने ये कहा कि पैदा ना होता वो मसीहा तो, पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला नहीं होता, बेरंग रहती ये जमी आसमां का रंग नीला नहीं होता, भारत कब का कंगाल हो जाता यारो अगर भीमराव अंबेडकर जैसा हीरा मिला नहीं होता। नज़ारों में नज़ारे देखे ऐसा नज़ारा नहीं देखा, आसमान में जब भी देखा मेरे भीम जैसा सितारा नहीं देखा। और सर जो आपने बात कही है
कि क्वेश्चनिंग इज इम्पॉर्टेंट, एक क्रिटिकल टेम्पर इज इम्पॉर्टेंट। हमारी यूनिवर्सिटी जो हमारे क्वालिटेटिव स्टडी मटेरियल है, इनएक्सपेंसिव मॉडल ऑफ लर्निंग है, जब हमारे ज्ञान दर्शन ज्ञान वाणी के माध्यम से, जब हम इंटरनेट के माध्यम से 21st सेंचुरी एजुकेशन में अपने बच्चों से, अपने विद्यार्थियों से, चाहे वो सर्टिफिकेट डिप्लोमा हो या पीएचडी प्रोग्राम हो, उनसे जुड़ रहे हैं, तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं सर कि वो क्रिटिकल टेम्पर, वो एक जीवन के प्रति विश्वास, एक बेहतर समाज, देश और दुनिया बनाने में जो जिम्मेदारी हमें बाबा साहब की तरफ से मिली है, जो बाबा साहब ने एल्फिंस्टन कॉलेज से लेके जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी और न जाने कितनी जगहों पे उन्होंने काम किया, एक अंबार, एक हिमालय पर्वत जो उनकी राइटिंग से बना है सर, उसके माते जो हमारी जिम्मेदारी है सर, हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो संसद में बाबा साहब के स्टैचू की बात करी, जो डिजिटल डिवाइड की, और आज के समय में जो ऐतिहासिकता की बात करी है, और आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कैसे विद्यार्थियों को अपना रास्ता बुलंद करना है, कैसे इस देश को और आगे ले जाना है। मुझे लगता है एक दिन आएगा सर जो चांद पे जो भी प्लॉट की बात आप कर रहे थे वो होगा। तो आपके इसके बाद जो है हमारा कार्यक्रम बहुत सारा, मेरा जैसे मुझे आदेश हुआ था कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना है पर यह है जिस तरह से आपने सर समा बांधा है, आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस कार्यक्रम की जो अगली कड़ी में जो है हमारी जो थॉट लीडर हैं, हमारी वाइस चांसलर मैडम, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं आज के इस विषय पे अध्यक्षीय भाषण के लिए। आप जानते हैं किस तरह से मैडम जो है पिछले 36 साल से इस पूरी कंट्री में नेशनली और इंटरनेशनली हमारा प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैडम, हम वी आर सो ग्रेटफुल दैट यू विल डिलीवर दिस लेक्चर। थैंक यू। Thank you very much. Honorable Union Cabinet Minister Shri Chirag Paswan ji, distinguished guests, my dear colleagues, dear students from across India and across world, and all members of the extended IGNOU family joining us live from our regional centers and through various digital platforms. Namaskar and warm greetings. With immense pride and profound sense of responsibility, I extend to you all a warm welcome on the 135th birth anniversary celebration of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar here at Indira Gandhi National Open University. We are specially honored to have Shri Chirag Paswan ji, the Honorable Union Cabinet Minister of Food Processing Industry, Government of India, among us today. Your gracious presence, sir, lends immense significance to today's event, and we are grateful to you for sharing your valuable time to deliver this insightful, near to the heart, special lecture on the occasion of 135th birth anniversary of Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar. This celebration is being held not only here at the IGNOU headquarters, but also being broadcast live across our regional centers and streamed globally through social media platforms, a testament to the IGNOU's community's national and international stature. Established in 1985 by an act of parliament, IGNOU, in 40 years of its existence, has evolved as the largest university in the world with 3.5 million students on the rolls and a base of 4 million alumni community. The university aims to meet the educational goals of learners from India and world over, regardless of geographical, socio-economic status and other circumstances. This diversity reflects Dr. Ambedkar's vision of inclusive education and social justice. IGNOU, as an instrument of inclusive education, has relentlessly dedicated itself to promoting inclusion and accessibility in higher education. With a network of 69 regional centers, around 300 learner support centers, and around 334 programs of study that reach the country's remotest corners, we have carried forward the mission of education as a right, not a privilege.
we have extended education opportunities to the marginalized communities, including SC/ST, which is around 21.2%, women around 52%, and the minorities. And if we take the backward class altogether, it is somewhere around 62%. We also have jail inmates as our students across Indian prisons through our special designed programs. Members of the armed forces and paramilitary services, ensuring that those who serve the nation also gain access to intellectual growth. We have a special program for the Agniveers as well. IGNOU today is not just a university. It is a movement of empowerment, an open university in the truest sense, committed to the democratization of knowledge. Dr. Ambedkar believed education was essential for liberty, equality, and justice. He stated that an educated man could transform society. This vision of social emancipation through education underpins IGNOU's philosophy. IGNOU provides accessible, cost-effective, and flexible education options, contributing to Baba Saheb's vision of a society with equal opportunities for all. As we face technological disruptions like artificial intelligence, rising inequality challenges, and the global crisis of democracies, Dr. Ambedkar's ideas are more relevant than ever. Dr. Ambedkar's advocacy for constitutional morality reminds us of the importance of ethical governance. His insistence on affirmative action continues to guide our policies in addressing structural inequalities. His vision of liberty, dignity, and fraternity remains a moral compass for social harmony. IGNOU is committed to carrying these ideals forward into the future. We believe technology should empower everyone, while we integrate digital tools, open source content, and AI platforms in pedagogy. On the other hand, we prioritize human educational values. As India marches towards the vision of Viksit Bharat at 2047, IGNOU will play a crucial role in upskilling youth, particularly those in under-resourced regions, providing second chances to school dropouts, workers, and rural learners, supporting nation building through knowledge, innovation, and social leadership. Dr. Ambedkar believed actual progress comes from uplifting the marginalized. IGNOU proudly serves as an opportunity. Dr. Ambedkar's legacy is not confined to India itself. Across the world, movements for civil rights, anti-discrimination laws, and constitutional protection echo his ideals. IGNOU, with its international reach, seeks to share and nurture those values through global academic collaborations and South-South knowledge exchange. IGNOU's vision, values, and daily work resonate deeply with Dr. Ambedkar's principles. We are committed to his dream of a just, equitable, and enlightened society where everyone, regardless of background, can dream, learn, and rise. Let us remember that Ambedkar Jayanti is not merely a celebration of a great man, but a call to action, a reminder that the struggle for equality, education, and justice continues. We pledge that IGNOU will continue to serve as a day of hope, a platform of promise, and a torchbearer of Ambedkarite values in the 21st century. I once again express my heartfelt thanks to Sri Chirag Paswan ji for his presence and support, and to every member of IGNOU community who make this vision possible. Together, let us keep Dr. Ambedkar's legacy alive, not only in words, but also in the transformative power of education. Congratulations to all the award winners. I also congratulate Team IGNOU SC/ST employee
Welfare Association and IGNOU SC/ST Teacher Association for successfully conducting the Ambedkar Jayanti celebrations 2025. Thank you. Jai Hind and Jai Bharat. Thank you very much, madam. The way we are able to take care of our students through pre-admission counseling, through fee waiver, and then career placement assistance after the completion of degrees because of you, and every time we go to her with a proposal, she will help us in facilitating that in the most effective sense. Thank you, madam. Your powerful presidential address means a lot, and you have brought forward the highest points of our educational mission. And as we understand कि इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं हमारे चीफ गेस्ट साहब की तरफ से और हमारे कुलपति मैडम की तरफ से, इनका धन्यवाद के लिए मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे रजिस्ट्रार साहब को, श्री डॉक्टर आलोक चौबे जी इस जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों बाद मैं ये सभागार को बिल्कुल जैम पैक्ड देख रहा हूँ, और कुछ लोग जो अभी गए हैं, कुछ बच्चे गए हैं, वो सिर्फ शायद हमारे मुख्य अतिथि को ही देखने और सुनने आए थे, बस वही लोग गए हैं। बाकी सभी लोग विद्वान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इग्नो SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन, इग्नो SC/ST टीचर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आज बाबा साहेब अम्बेडकर का 135वां जयंती समारोह का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि श्री चिराग पासवान जी द्वारा इंक्रीजिंग रिलेवेंस ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर लेगेसी इन 21st सेंचुरी विषय पर एक बड़ा भावुक सारगर्भित हमको उद्बोधन दिया गया, और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी उनके संदेश इसमें शामिल थे। इस अवसर पर मैं सबसे पहले धन्यवाद की इस कड़ी में सर्वप्रथम मैं भारत के भारत रत्न बाबा साहेब BR अम्बेडकर जी को नमन करता हूं, और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि मैं जब भी हमारे यहाँ कोई बड़ी विकराल समस्याएं होती हैं, जब उनका हल निकलता है, मैं किसी न किसी माध्यम से ये कोशिश जरूर करता हूं कि मैं देखूं इस मामले में पूर्व में जो पुरानी समस्याएं, इसमें बाबा साहेब का क्या मत था, क्या सोच थी। मैं हमेशा पाता हूं कि आज जो समस्याओं का, विकराल समस्याओं का हम हल करते हैं, उसका समाधान वो दशकों पूर्व दे चुके थे, और उन्होंने यही कहा था कि अगर आज ये समाधान इस रूप में ना लिया गया तो भविष्य में ये समस्याएं विकराल हो जाएंगी। मैं उसके कुछ उदाहरण भी आपके सामने रख सकता हूं। जैसे टर्की के लिए हमने खिलाफत आंदोलन किया था, उसका उन्होंने विरोध किया था, और आज हम देख रहे हैं कि जब हम लड़ाई के मुहाने पे खड़े हैं तो टर्की हमारे देश के साथ क्या कर रहा है, जिसके लिए हमने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन किया था, इसका उन्होंने विरोध किया था। ये कितनी बड़ी दूरदर्शिता थी। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल में अंतर समझना। उनकी जितनी दूरदर्शिता शायद उस वक्त लोगों में ना रही हो, इसीलिए उनकी सारी बातें कभी मानी गई, कभी नहीं भी मानी गई, और इसीलिए मैं कहता हूँ ताजीवन उन्होंने संघर्ष किया है। पढ़ाई के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने समाज का जो विभाजन था उसको पूरा करने में संघर्ष किया है, और उन्होंने अनेक कष्ट सहे। सबसे बड़ी बात है, उन कष्टों का कभी उन्होंने प्रतिकार उस रूप में नहीं किया, क्योंकि उनको आगे बहुत कुछ करना था। ये उनकी सोच में था कि मैं किसी व्यक्ति से प्रतिकार नहीं करूंगा, भले ही उनके ऊपर बहुत व्यक्तिगत आघात हुए थे। दूसरा मैं कहूँगा, राइट टू रिप्रेजेंटेशन का भी एक्ट उन्होंने उस समय बात की थी जब हम जस्ट आज़ाद हुए थे, लेकिन वो भी माना नहीं गया था। ये एक बहुत लॉन्ग टर्म गोल था जो बाद में हमने 2008 में लागू किया है। तो जब ये समस्याएं, हमें उनका यही कहना था, जब तक हम वर्ग को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, हम कैसे अपनी पीढ़ी में उसको साथ लाएंगे। तो मैं आज भी उनके बारे में सबसे पहले ये चीज़ और कहना चाहूँगा कि वो किसी वर्ग विशेष को प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते थे। इसमें मैं चूंकि टीचर हूँ, एक दो उदाहरण से आपके सामने जरूर रखूँगा। आप ये बताएं, अगर माता पिता के बच्चे हैं और अगर एक बच्चा कमज़ोर है
तो माता पिता अगर उस पर विशेष ध्यान देते हैं और अन्य बच्चों के समकक्ष सशक्त मेधावी बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो उसी बच्चे के माता पिता होते हैं? नहीं, वो सारे बच्चों के माता पिता होते हैं। उन्हें मालूम है एक परिवार की तरक्की के लिए सभी बच्चों का एक साथ सशक्त होना जरूरी है। यही काम बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया। इसी को आगे बढ़ाऊं, अगर किसी टीम में 2-3 खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, कोच अगर उसको विशेष ध्यान देता है, तो वो कोच उस 2-3 खिलाड़ियों का कोच नहीं होता, वो टीम का कोच होता है। वो जानता है जब तक टीम के पूरे खिलाड़ी फुल पोटेंशियल से नहीं खेलेंगे, टीम नहीं जीत सकती। ये दूसरा उदाहरण है। और तीसरा मैं आता हूं, सबसे बड़े, इसको फर्दर इंटीग्रेट करूं, समाज में। वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसमें एक वर्ग पीछे हो और बाकी के वर्ग आगे हों। यही काम उनने किया है। उन्होंने एक समाज को दूसरे समाज के समकक्ष लाया है। जबकि उनके ऊपर बड़े अन्याय हुए थे, उन्होंने उसको प्रतिकारात्मक रूप अपने एक समाज को ऊपर लाने की बात नहीं करी, समान लाने की हमेशा बात करी है। और ये बात सत्य है, वही राष्ट्र तरक्की कर सकता है जहां समाज का हर वर्ग समान रूप से सशक्त हो, मेधावी हो और उसको समान अवसर उपलब्ध हो। यही काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। इसीलिए मैं उनको ये कहता हूं कि वो संविधान के ही निर्माता नहीं थे, वो राष्ट्र के निर्माता थे। उन्होंने राष्ट्र कैसे बनता? समाज से। उन्होंने समाज का निर्माण किया, एक सशक्त समाज के निर्माण में भूमिका निभाई। वो राष्ट्र निर्माता भी थे। व्यक्तिगत रूप से ये बात सही है कि उन्होंने बड़े अन्याय सहे, सब कुछ सहे। इसके बावजूद उनकी जो बातें थीं वो दशकों बाद, जैसे हमारे मुख्य अतिथि ने भी ये उद्धरण किया कि उनको बहुत बरसों बाद भी उनकी बातें याद की गई और आज हम उनको लगातार याद कर रहे हैं। तो मैं यही लास्ट में यही कहूँगा कि भारत रत्न के लिए भी वो सर्वाधिक उपयोग थे। उस समय उनको नहीं मिला क्योंकि उस समय भी उनके विरुद्ध बातें होती थी। अब मैं इस कड़ी में सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि माननीय चिराग पासवान जी, केंद्रीय मंत्री फूड प्रोसेसिंग एवं इंडस्ट्रीज़ का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने प्रीशियस टाइम में से हमें टाइम दिया और यहाँ आके हमारे लिए एक बहुत सारगर्भित भाषण दिया और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी उद्बोधन दिया। और हम आपको आश्वस्त करते हैं सर, हम आपके ही बताए हुए रास्ते पे हम अगली पीढ़ी को भी बाबा साहेब के जो संदेश थे, जो समाज निर्माण में उनका योगदान था, उससे उनको अवगत कराते रहेंगे। और एक नया समाज भी आज एक सशक्त समाज के रूप में, एक समाज के रूप में उद्धृत होगा। हम आपको बहुत बहुत विश्वास दिलाते हैं सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं इसी कड़ी में हमारी माननीय कुलपति का कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सारे समारोह, हमारे यहाँ बच्चे, ठीक है बच्चे नहीं हैं, फिजिकली बच्चे नहीं होते, लेकिन उसके बाद ये कैंपस बहुत जीवंत बना रहता है क्योंकि यहाँ सतत आयोजन होते रहते हैं इसी प्रकार के। और इसमें हमारी माननीय कुलपति जी का हमेशा सहयोग, मार्गदर्शन और हमेशा उनकी प्रेरणा रहती है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभार करता हूं कि हमेशा की तरह इस आयोजन में भी उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और अपने उद्बोधन से हम सभी को, सारगर्भित उद्बोधन से हम सभी को अमृत पान कराया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका भी बहुत बहुत आभार। इसके बाद मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमारा ये एक बहुत ही अच्छा आयोजन जो किया गया है, जिसमें 13 दिन लगातार एक्टिविटीज़ हुई और उसके बाद आज ये आयोजन हुआ जिसमें एक बहुत अच्छा, हमारे को एक संदेशात्मक, एक बहुत अच्छे वक्तव्य सुनने मिले और साथ साथ जो बच्चों को प्रेरणा दी गई, हमारे माननीय मुख्य अतिथि ने उनको पुरस्कार देके उनका उत्साहवर्धन किया। इसके आयोजन के लिए मैं SC/ST टीचर्स एसोसिएशन और SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन, दोनों को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। एक बहुत सफल आयोजन के लिए आपने रात दिन लगकर इसको आयोजित किया और सफल बनाया। साथ ही साथ मैं अन्य हमारे जितनी भी एसोसिएशंस के प्रतिनिधि हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी यहाँ उपस्थित होकर और हमारा बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ाया है। मैं ज़रूर इस टीम में उत्साहवर्धन की इस कड़ी में कुछ लोगों का मैं नाम भी लेना चाहूँगा। इस कड़ी में मैं नाम लेना चाहूँगा इग्नो डॉक्टर राजेश कुमार जी, जो हमारे मंचासीन हैं, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने रात दिन मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, श्री महावीर गौतम जी, वो भी हमारे मंचासीन हैं। श्री देवेंद्र कुमार जी,
और डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा जी, राजवीर जी, इनको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और यहाँ सारे उपस्थित स्कूल के डायरेक्टर्स, रजिस्ट्रार्स और हमारे अधिकारी, कर्मचारी और हमारे प्रबुद्ध टीचर्स और जितने भी टीचिंग, नॉन टीचिंग और अन्य जो लोग भी हैं, मैं उन्होंने भी इस समारोह में उपस्थित अपनी सारगर्भित उपस्थिति देकर इस आयोजन को सफल बनाया। साथ ही मैं हमारे केडी प्रसाद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इनके माध्यम से ही आज का ये प्रोग्राम हमारे पूरे राष्ट्र भर में 69 हमारे आरसीज में प्रसारित हो रहा है, डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है, और वो भी वहाँ पे भी हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे अधिकारी, कर्मचारी, बच्चे हैं, वो इसका लाभ ले पा रहे हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंत में मैं जो भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से जो भी इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं लोग, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरी टीम जो हमारी EMPC की, उसका धन्यवाद करता हूँ। अंत में मैं आयोजन समिति ने मुझे दायित्व दिया है कि मैं आप सभी को इस प्रोग्राम के अंत के बाद एक स्वल्पाहार का आयोजन किया है, उसमें मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो ये प्रोग्राम हम यहीं पे समाप्त करते हैं, इस जिम्मेदारी के साथ जो भी विचार व्यक्त किए गए हैं उनको हम रोज़ हर पल उसको आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जलपान की घोषणा हुई है, बाहर फॉयर के दर उसकी व्यवस्था है।